Hello students, welcome to the channel. Today's topic is array insertion. So let's understand what array insertion is. How array insertion is being done, what is the core concept behind it. Array insertion is the process of adding a new element into an array at a specified position. Unlike simply appending to the end, insertion requires careful management of existing elements to make space for the new coming element. This fundamental operation is crucial for dynamic data handling within static array structures. Imagine a line of numbered boxes. When you insert a new box in the middle, all the subsequent boxes must shift to accommodate the new one. So what is the basic idea? At the very first step, you need to check the array capacity, which is कि आपका array capacity के अंदर at least एक position ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर the element size is 6 of the array and there are 5 elements, only then you can accommodate the one new element, right? That is whether the given array is having enough space to accommodate the new one or not. The second step is validating the position. We have to check whether the given position which is the user is want to insert the element into one particular place. Suppose the index was 2. So you have to check whether that index that has been entered by the user is between the valid bounds or not. That is from 0 till the size of the array, actually n minus 1, from 0 to n minus 1, whether the given number, the specified insertion position is within the valid bounds or not. Then we have the third step, which is shift elements. We have to move all elements from the insertion position to the end, that is one position to the right, to create a empty slot. Then fourth step is insert new element. Place the new element into the now empty slot at the desired position. And at last, we need to update the array size to n plus 1. Now, let me clarify one thing. यहाँ पे जो आप शिफ्ट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि वी आर शिफ्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द इंसर्शन पोजीशन टू द एंड वन पोजीशन टू द राइट, दैट मीन्स कि जिस पॉइंट पे आपने इंसर्ट करना है उससे लेके लास्ट तक जितने भी एलिमेंट है एक एक स्टेप आप पीछे लेके जाओगे ताकि आपकी एक पोजीशन क्रिएट हो सके. बट जो रिजल्टेंट एरे होगा उसमें एक करेक्टर दोबारा से आएगा. सपोज द एरे वाज 1 2 3 4 5 एंड यू वांट टू इंसर्ट आफ्टर 2, तो आप क्या करोगे? 3 4 5 को एक एक स्टेप पीछे लेके जा रहे हो. तो असल में होगा क्या कि सेकंड स्टेप में 1 2 3 3 4 5 हो जाएगा. यू गेटिंग इट? बिकॉज आप पीछे मूव कर रहे हो. जो एक्चुअल पोजीशन है जहाँ पे आपने एलिमेंट इंसर्ट करना था उसको तो आपने चेंज ही नहीं करा. यू आर नॉट अपडेटिंग दैट. उससे पीछे जितने एलिमेंट है उनको एक एक कदम पीछे लेके गए, राइट? विद दिस लॉजिक आपका जो स्पेस है वो एम्प्टी क्रिएट नहीं होगी. वो पुरानी वैल्यू से अपडेटेड है, आप उसको नई वैल्यू से अपडेट करते हो. इट्स द एग्जैक्ट लॉजिक. Now, this is the formal way of writing the algorithm. That is, there is an array, linear array, with the name linear array LA, and elements are n. K is the position or the actual index value where the elements needs to be inserted. This algorithm inserts an element item into the kth position in LA. Now, what are the steps in order to complete this insertion task? The very first step is set j is equal to n. क्योंकि जो आपका लूप वेरिएबल है उसको आपको किसी से स्टार्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे हम लूप उल्टी चलाते हैं, दैट इज फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द एरे. सो दैट्स व्हाई वी सेट द लूप वेरिएबल और एनी वेरिएबल j इक्वल टू n. देन रिपीट स्टेप 3 4 while the condition j is greater than equal to k. यानी कि आप पीछे से लूप को चलाओगे, किस स्टेप तक चलाओगे? जब तक वो एलिमेंट रीच ना हो जाए, जब तक वो लोकेशन रीच ना हो जहां तक आपने जहां पे इंसर्ट करना है. Then move jth element downward, that is set LA of j plus 1 is equal to LA of j. Further, you need to do what? Just set the counter j to j minus 1, that is you are decrementing the j. क्योंकि लूप उल्टी चलाई है तो पहले n के लिए चलेगी, फिर n minus 1 के लिए, फिर n minus 2 के लिए and so on. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है. थेरेटिकली हम यहाँ पे n लिख रहे हैं, बट व्हेन वी आर गोना डू इट प्रैक्टिकली तो वहां पे आप n minus 1 से सेट करते हो, क्योंकि this logic is from 1 to n, as arrays are 1 to n in data structure theory. But if you are going to implement it, it would be starting with 0 and ending with n minus 1. At step 5, when the loop is ending, उसके बाद आपको क्या करना है कि set LA of k is equal to item.
क्योंकि एक जगह आपके पास क्रिएट हो गया, आपने क्या करना है उसके बाद उस जगह पे एलिमेंट को, जो न्यू एलिमेंट है दैट इज आइटम, उसको इंसर्ट कर देना है। लास्ट में बोल देना है कि अब हमारा साइज n से n+1 हो गया, द एरे हैज बीन इंसर्ट, एरे एलिमेंट हैज बीन इंसर्टेड। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स, कि अगर आपका ये एरे था 2 7 1 23 5, तो आपने अगर 15 एंटर करना है तो होगा क्या कि ये जो दो एलिमेंट हैं 23 एंड 5, इन दोनों एलिमेंट को एक एक स्टेप पीछे लेके जाना है। यानी कि पहले आप क्या करोगे, इस 5 को एक स्टेप आगे लेके जाओगे। सबसे पहले इस 5 को एक स्टेप आगे लेके जाओगे आप। 23 को आप एक स्टेप आगे लेके जाओगे लाइक दिस, और आपका रिजल्टेंट एरे बन क्या जाएगा, 2 7 1 23 23 5। यानी कि 23 दो बार आएगा। 23 एक तो यहाँ पे आ जाएगा, 23 एक तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। इस लोकेशन के ऊपर आपका 23 पहले का ही पड़ा है, आप उसको चेंज ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट चेंजिंग a(3). तो होगा क्या, आपका 23 दो बार आएगा। सो जो पहली अक्रेस ऑफ 23 है उस लोकेशन के ऊपर आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, सिर्फ इस 15 को ऐड कर रहे हो, राइट। सो आपका पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, एरे 2 7 1 23 5, ये आपका ओरिजिनल एरे। जब आपने मूवमेंट कर दी, एक एक स्टेप पीछे ले गए, तो एरे क्या बन जाएगा, 2 7 1 23 23 5। उसके बाद जो आपके फर्स्ट अक्रेस ऑफ 23 है उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आपने ये 15 ऐड कर दिया। दिस इज द लॉजिक, राइट। नाउ दिस इज द कोड इम्प्लीमेंटेशन। एज ऑलवेज आई एम अगेन गोना टेल यू कि आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप उसको बड़ा करके बाद में देख सकते हैं, अगर आपको साइज में ये छोटा लग रहा है तो, ठीक है। अब इंसर्शन का एल्गोरिथम है क्या, इट वर्क्स इन 2 3 स्टेप्स। पहले तो आप एरे का साइज बड़ा लोगे ताकि आप ये चीज एकोमोडेट कर पाओ कि जो नया एलिमेंट आया है वो किस लोकेशन के ऊपर आया है। अगर आपने एरे का साइज पहले से ज्यादा ले लिया, जैसे 10 की जगह आपने डायरेक्टली 100 ले लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले यूजर से पूछोगे कितने एलिमेंट एंटर करने हैं। सपोज यूजर सेट की मुझे 10 एलिमेंट एंटर करने हैं, तो आप 10 एलिमेंट्स के लिए ये लूप चलाओगे टू स्कैन 10 एलिमेंट्स, राइट। फर्दर यू गोना आस्क द यूजर कि एट व्हाट पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट। वो किसी एक वेरिएबल के अंदर, जैसे इस एग्जांपल में हमने इस कोड के अंदर पीओएस नाम दिया उस वेरिएबल को, एक वेरिएबल के अंदर आपने वो लोकेशन को सेव कर लिया। देन व्हाट इज द एलिमेंट यू वांट टू एंटर, वो भी हमने सेव कर लिया। फर्दर अब मेन कंसेप्ट आएगा, दैट इज शिफ्टिंग। In this loop we are shifting the elements as we have learned in the particular example। जो हमारा एल्गोरिथम है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू n से शुरू करके ग्रेटर देन इक्वल टू pos तक चला रहे हैं। अब यहाँ पे n-1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हम एरे का साइज ही पहले क्या ले रहे हैं, एक ज्यादा ले रहे हैं, और एलिमेंट सेंटर कितने करे थे, n करे थे। पहले हम क्या करते हैं कि एरे का अगर साइज 6 है तो एलिमेंट्स जो एंटर हो रहे हैं वो 0 से लेके 5 तक एंटर होते हैं, राइट। यहाँ पे हम जो लॉजिक लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये ट्वीक करना पड़ेगा अपने कोड में। आप इस कोड को जब चला के देखोगे, एक बार चेक करना कि n की वैल्यू, i की वैल्यू n रख के क्या हो रहा है और n-1 रख के क्या हो रहा है, राइट। इफ यू फील लाइक कि यहाँ पे कोई इशू है या यू वांट द एग्जैक्ट कोड, मैं आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होता नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं अपने वेबसाइट के ऊपर डाल के आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ इट इज नीडेड प्लीज डू कमेंट, राइट। तो उसके बाद आपका लूप चलेगा क्या कि i की वैल्यू n से लेके आप पोजीशन तक आप उसको लूप को चला रहे हो, और लूप के अंदर कर क्या रहे हो, a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i-1, या जो भी आपका एरे का नाम है, arr है, a है, एरे है, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो, तो यू आर शिफ्टिंग द एलिमेंट्स, राइट। देन जब आपके एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ये आपका सिर्फ क्या है, आप इंसर्ट कर रहे हो वैल्यू, कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका आइट्रेशन दोबारा आ जाएगी। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि वैल्यू एक रिपीट हो गई है, क्योंकि उससे पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो आपने एक एक कदम पीछे कर दिए, बट उस लोकेशन के ऊपर आपका एलिमेंट वही रह गया। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे इंसर्ट करना था, दैट वाज पीओएस, वहां पे आप क्या करोगे, अभी वैल्यू को इंसर्ट कर दोगे।
राइट। अगर आप देखो यहाँ पे लूप जो चल रही है कहाँ तक चल रही है, इक्वल टू पीओएस, यानी कि अगर मान लो पीओएस की वैल्यू 3 एंटर करी है यूजर ने, तो ए ऑफ 3 तक ये इंसर्ट कर रहा है। और अगर यूजर ने क्या बोला कि एंटर द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट, यही चीज पूछी थी ना, उस चीज को हमने पीओएस के अंदर सेव करा और लूप चला दी इक्वल टू पीओएस तक। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पीओएस -1 वाली लोकेशन के ऊपर अपने एलिमेंट एंटर, राइट। एट द एंड, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द अपडेटेड एरे, आप नॉर्मल एक लूप चलाओगे 0 से लेके <n तक, और सारे एलिमेंट्स प्रिंट एफ करके परसेंटेज डी लगा के आप ARR ऑफ आई लिख के आप उसको प्रिंट कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है परसेंटेज डी के बाद, ताकि जो आउटपुट आए वो एरे एलिमेंट्स के अंदर थोड़ी स्पेस दिखे, राइट। Then comes the logic of complexity of array insertion. Now how complexity works. अब array insertion के अंदर क्या है कि in the worst case scenario all the existing n elements must be shifted, कि आपका जो element to be inserted था वो पहला ही element था, कि इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर इंसर्ट करना है। तो मान लो अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो 100 बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। This makes the time complexity linear, directly proportional to the number of elements. So we say the time complexity of array insertion would be big of n. अब इस केस में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बेस्ट केस कैन बी कि बिग ऑफ 1 कम्प्लेक्सिटी होगी। वो किस केस में होगी, अगर आपका एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इज द लास्ट एलिमेंट, कि अगर 5 एलिमेंट ऑलरेडी थे, आपने 6th पोजीशन के ऊपर एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आपको शिफ्टिंग कुछ नहीं करनी, आप डायरेक्टली जो एलिमेंट है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप बोलोगे कि बिग ऑफ 1 कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी उस केस में। स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी, क्योंकि आप कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ एक्स्ट्रा एरे नहीं ले रहे हो, कि ये नहीं कि 100 साइज के एलिमेंट्स थे और आपको 100 का एक और एरे लेना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू डू द शिफ्टिंग। नो, दिस नो सच एक्स्ट्रा यूसेज। हार्डली 1 या 2 वेरिएबल होंगे, जैसे पीओएस वेरिएबल हो गया या वैल्यू वेरिएबल था, या आईजे जो भी आप लूप का वेरिएबल ले रहे हो उनके अंदर आप यूज करोगे। बट दीज आर नॉट चेंजिंग विद द चेंज इन व्हाट आई वांट टू से विद द चेंज इन साइज ऑफ एरे, ये वेरिएबल्स आपके चेंज नहीं होंगे। सो द कम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ 1, क्योंकि सेम एल्गोरिदम, सेम लॉजिक और सेम ही कोड आपका, चाहे आप 1000 इमेज 1000 वैल्यूज के लिए चला लो या आप 10 के लिए चला लो, पाथ सेम ही है। So now the trade-offs and consideration are, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। Firstly is efficiency of shifting. Frequent insertions into large arrays can be costly due to extensive element shifting. Now there is a concept of fixed versus dynamic sizing. Fixed size arrays might run out of space, while dynamic arrays handle resizing automatically but incur overhead. Then third point is, for applications with frequent insertion and deletion, linked list or dynamic arrays might be more efficient rather than using actual arrays. Now where we can use is in maintaining sorted order, in small data sets, or in infrequent modifications we can use array insertion, right? These are basic applications. Then what are the key points to be taken? Mastering array insertion is vital for understanding how data is manipulated in memory. Then performance is, be aware of the big of n time complexity and its impact on large data sets. Then we have to choose wisely when arrays are suitable and when other data structures might be more performant, because in case of arrays हमें डायनामिकली हम साइज चेंज नहीं कर सकते, तो इंसर्शन डिलीशन दोनों केस के अंदर ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया रहेगा एरेस के अंदर। सो व्हेन वी डिस्कस लिंक लिस्ट इन फ्यूचर, वी आर गोना क्रिएट अ वीडियो फॉर लिंक लिस्ट एज वेल। जब हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे उस टाइम पे हम ये चीज समझेंगे कि एरेस की इसी प्रॉब्लम को मतलब स्टैटिक नेचर को ही हम ओवरकम करने के लिए वी आर मूविंग टू लिंक लिस्ट, राइट। That's it for today's lecture. If you have any doubts, feel free to ask in the comment section. If you like the video, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you, students.